Yes, good morning, everyone. Bring your civics book and copy. Everyone, camera on, please, beta. Arman Chima, good morning, beta. Unmute karo. Good morning, ma'am. Hanji, good morning, Arman. From today, you will definitely attend all the classes. Otherwise, you will be marked absent and you are responsible for the next. Sejpreet Singh, camera. Everyone's camera. Otherwise, I am removing. Surinder Preet, camera. Hanji, bring your civics book. Ethnic composition of Belgium. आराधना कैमरा ऑन बेटा. अक्षित ठाकुर कैमरा ऑन. सुरेंद्र कैमरा ऑन. अरमान खिंदरिया कैमरा ठीक कर बेटा. हाँ, ऐसे पीछे होके बैठ. हाँ हरनूर बेटा. यस हरनूर. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Ma'am, I'm turning on my camera in few minutes. ओके बेटा. अजय थोड़ा सा कैमरा ठीक कर. फोन थोड़ा. हाँ यस. अक्षित ठाकुर लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू. If any chair available near you, please sit. Akshit. Gurjashan Navneet, camera on. Chalo. Thank you very much that I have taken your attendance one time and second time, second half attendance. Okay. So class mein rehna. Now open your book, beta. Power sharing chapter 1 civics. Ethnic composition of Belgium. Anmol Singh is in the class. Anmol, raise your hands if you are in the class. Daksh also not in the class now. Let me mark absent. Gurpahul absent. Harshita Harpreet Singh absent. Varun Bhatti absent. Sejpreet Kaur absent.
रणवीर, रमनीक, राहुल, पलक, निर्वैर एब्सेंट, अरमान खिंदरिया कैमरा, चलो बेटा नाउ ओपन योर बुक. Power sharing in other countries. Okay. First of all, we are going to visit Belgium. छोटा सा देश है, हमारे हरियाणा से भी छोटा. हाँ जी, ओपन योर बुक बेटा. I think we have read one paragraph. Am I right? Okay, Harnoor, thank you very much for replying. Now the first paragraph is the answer for the question ethnic composition of Belgium, which we have read earlier. Right. The thing was a little different, that the composition in the Brussels or in the capital was little difficult and complicated also as well, and different also. So in first paragraph, highlight the points, underline the points, which will be the answer. The answer will be in 5 points. Show me thumbs up if you are ready with your pen and. Okay, thank you, Kashish. Make sure that you will listen only one time. Okay. Yes. Camera on, beta. Okay. Hanji, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It's border with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. Luxembourg tak lo aap introduction. Okay, thank you, Harleen. Hanji, first point, it has a population of little over 1 crore, but half of the population of Haryana. Heading hai population. हाँ हरनूर, हरलीन. Yes, Harleen. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, beta. मैम आप ये क्वेश्चन दोबारा करवा रहे हो? नहीं, we have marked the answer. Ma'am, we have marked and we have to start from let us compare the second paragraph in right hand side. नहीं, we have marked answer for 5 points. Yes, ma'am. Okay, we have written on copy. Yes, ma'am. Very good. The ethnic composition. Okay. Then second paragraph we have read. Yes, ma'am. Okay. Then no problem, beta. Before going Sri Lanka, we will draw one thing. Thank you, beta, for informing. Yes, Kashish. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, on that day I was not having my book. So can you repeat the answer? Yes, beta. I'm showing you even the answer. Ethnic composition of Belgium. अब कशिश नहीं थी, many more students were absent on that day, so I'm going to clear that. That Belgium is a small country in Europe और इसकी population हरियाणा से भी कम है, लगभग 5 crore. Its population is complicated in Belgium as well as its capital Brussels. 59% Flemish region, Dutch speaking, and 40% Wallonia region and speaking French. 1% remaining, those are German people. And different composition in Brussels, that is Kashish 80%, 20%. And this is little difficult. Difficult keh rahi hu, different. Totally different. Okay, so the minority, second paragraph dekho. The minority French people community was relatively rich and powerful. Underline 1 mark answer. Which community was powerful? French speaking. This was resented by Dutch speaking community who got benefit for economic development and education. क्योंकि ये कम थे तो इनको सबसे ज्यादा benefit मिल रहा था. And tension Dutch speaking और French speaking में बनती रही 1950s और 1960s में. 10 साल तक काफी झगड़ा हुआ. But आगे आप पढ़ोगे Belgian government is smart enough, intelligent enough that the conflict was resolved. Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. जो majority में थे city में और वो country में तो वो minority में थे capital में. ये थोड़ी सी ethnic composition इसकी complicated है. Now open your copies. बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो. Where you have written the question ना,
उस क्वेश्चन के नीचे यू विल ड्रॉ वन डायग्राम, वन पाई ग्राफ. Open your copies. Write down today's date, 13 May. I am sharing screen with you. Harsh, camera on, beta. Abhijit, camera on. Savan, Varun, camera on. सुरेंदर, सहज, मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई अभी आपकी. सहजप्रीत सिंह, सुरेंदर, गुरजशन, सवन. So that's why I have not marked your attendance. हाँ जी, एक हेडिंग बनाओ, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इन पाई ग्राफ. Ethnic composition of Belgium in pie graph. विक्रम लिखा बेटा हेडिंग? अक्षित लिख रहे हो ना? हाँ हरनूर बेटा. मैम जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ना वो फुल पेज कवर हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ ये हेडिंग? हाँ हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिख लो. इफ यू वांट टू रोटेट द कॉपी, ब्यूटीफुल बनाना है उस पाई ग्राफ को, तो आप कॉपी रोटेट करके बना लो. अलग से A4 शीट पे बना के फिर पेस्ट करना है, वो कर लो. असाइनमेंट शीट्स पे ड्रॉ करके कलर करके करना है तो वो कर लो आप. दिस विल बी डिपेंड अपॉन यू. ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है. अब ये जरूरी होगा तो मैं दे रही हूँ ना, अदरवाइज तो यू नो मैं पाईग्राफ डायग्राम नहीं बनाती हूँ मैं. बट एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम दैट वी विल डू. Okay, now I'm going to share my screen with you, so be very careful. This is the ethnic composition of Belgium. Now start drawing. ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है. एक सर्कल बनाओ बेटा. 59% डच लैंग्वेज. अभिजोत कैमरा ठीक कर. 1% जर्मन पीपल. 40% फ्रेंच लैंग्वेज. आराम से करो आप, मुझे कोई जल्दी नहीं है. बस ये पाई ग्राफ सुंदर और ब्यूटीफुल बनाना. 59% डच लैंग्वेज, 40% फ्रेंच लैंग्वेज एंड 1% जर्मन लैंग्वेज. 100% हो गया. हाँ जी, कैमरा ऑन एवरीवन. If you have any doubt, you can raise hand. उसी क्वेश्चन के नीचे बनाना बेटा जो बेल्जियम वाला लिखा था. यादवीर हो गया बेटा? सुरेंदर स्टिल कैमरा ऑफ. Akshit Thakur, your camera off. Gurjashan, your camera off. You will not enjoy the rest of the lesson, and you know this question is very, very important. Surinder, last warning. Gurjashan, last warning. Yes, now you will do one thing beta, grade 10D. Here you are watching the blank space. आपको नजर आ रही है बेटा 59% डच के नीचे आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है. 49 के पीछे भी नीचे आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है. So 59 Dutch speaking people. Can you tell me the area? यहाँ हम एरिया लिखेंगे. हाँ जी, प्लीज नोट डाउन. फ्लैमिश रीजन.
Please write here Flemish region. Flemish region. Here you will write Flemish region. This is Flemish region. Now here you are also watching 40%. This was Wallonia region. So here you are going to write Wallonia region. Wallonia. आप ब्यूटीफुल लिखना, मैम से लिखा नहीं जा रहा ब्यूटीफुल. हाँ जी, फ्लैमिश रीजन एंड विलोनिया रीजन. हाँ जी, अर्शदीप सिंह कैमरा. नवनीत हो गया बेटा? ओके, फ्लैमिश रीजन वेलोनिया रीजन लिखा. So now you have done about the pie graph. Now all the students 10D, show me your copy in camera. कि कहाँ आपने बनाया, ठीक भी बनाया या नहीं. हाँ दक्ष, वेरी गुड. ओके इशू. हाँ देवन. देवन क्वेश्चन कहाँ है? ओके अर्शिता. हरनूर वेरी गुड. गुरनूर ओके बेटा. ओके अजय, युवराज, विक्रम वेरी गुड. हरजोत, हरजोत ने बहुत सुंदर बनाया. ओके नवनीत नहीं दिख रहा, कॉपी क्लोज करो. ओके ठीक है. अर्शिया, अर्श. ओके अरमान खिंदरिया. यस हर्षदीप. ओके यस अभिजोत. ओके Harshita is in the class? No, today Harshita absent. युवराज कैमरा ठीक कर बेटा. ओके आराधना.
Okay. Now again open your book beta. Belgium पे आ जाओ. Harshpreet in the class? Harshpreet Singh, if you are in the class, raise your hands. Okay. Harshpreet done beta? हर्षप्रीत तेरी कॉपी नहीं देखी है मैंने, मुझे पाईग्राफ दिखा. ओके. एंड क्वेश्चन हर्षप्रीत? क्वेश्चन नहीं लिखा ना? क्वेश्चन बेल्जियम वाला नहीं लिखा. हाँ तो बेटा वो लिखना है. मैं मार्क कर लिया, अब आज लिख लूंगा. ओके ओके, लिख लेना बेटा. ठीक है. Ramneek, raise your hands if you are in the class. हाँ जी रमनीक, are you present in the class? Not. Yes बेटा. Ramneek, raise your hands if you are in the class. Ramneek, raise your hands if you are in the class. No. Now we will take one more move to Belgium. I'm going to share screen with you. Belgium's map. Though the same map is in your book also. Yes. Yes. Beta, please observe this map carefully. Though this map is not coming in the class, but in the paper, but you have to take care about the regions and areas. Yes, power sharing in Belgium, ethnic composition. You can say in between the center area, Brussels. This is the capital. Capital region, Dutch were in majority. वहां पर डच मेजोरिटी में थे. हाँ. And Flemish 59%, Dutch benefit of education and economic development. But Wallonia में different था system बेटा. In Wallonia 40% French people rich and powerful. और जर्मन तो ये तो थे ही 1% only. ये तो क्या ही पार्टिसिपेशन करेंगे ना. So this was the power sharing in Belgium, the ethnic composition. किस किस एरिया में कौन कौन से ग्रुप रहते थे and which groups were in majority as well as in minority. Okay, so now take 30 seconds, observe these two paragraphs and copy, and I'm asking some of the doubts to you. अब मैं डाउट पूछती हूँ आपसे, कौन कौन से एरिया में कितने कितने परसेंट था. फिर कल चलेंगे हम श्रीलंका. नवनीत, कैमरा ऑन बेटा. Those who have not completed question, they can complete right now. मेरे सामने बैठ के लिख लो. And today please make index pie graph of ethnic composition of Belgium.
युवराज गुड मॉर्निंग बेटा, अनम्यूट करो. Good morning, ma'am. Tell me the neighbor countries of Belgium. Netherlands, Hmm. Netherlands, Germany, and Luxembourg. Okay. अच्छा, the population of Belgium? मैम 1 करोड़ के आसपास, जैसे हाफ का 1 करोड़, हाफ ऑफ हरियाणा. Half of Haryana. ठीक है. अच्छा, majority language. मेजोरिटी लैंग्वेज जर्मनी से 1%. हाँ, वो तो मैं तो मेजॉरिटी पूछ रही हूँ ना, वो तो बिल्कुल ही 1% है जर्मन स्पीकिंग. ओ डच मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है. हाँ, मेजॉरिटी जो सबसे ज्यादा डच होती है. डच अच्छा लैंग्वेज. अच्छा. मिनॉरिटी. माइनॉरिटी जो सबसे कम, ओहो वो बताइए मैंने. जर्मनी. क्या हो गया? बुक है ना सामने युवराज? मैम है. हाँ, अब देखो जरा, एक नजर लगाओ उधर. हाँ जी अभिजोत, अनम्यूट करो. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. हाँ जी, मेजॉरिटी लैंग्वेज Ma'am, majority language was Dutch. एंड एरिया. 59% of the whole country, and it was in Flemish region. फ्लैमिश रीजन. एंड मिनॉरिटी. Minority was French, which was in Wallonia region. यस, ये चीजें याद रखनी है. हरजोत, टेल मी अबाउट ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. वहां पे कैसे थी पावर शेयरिंग? गुड मॉर्निंग. Good morning. Ma'am, in Brussels, the majority was French speaking and the minority was Dutch. But in the country, the majority was Dutch and the minority was French speaking. परसेंटेज बताना मुझे कैपिटल में. मैम कैपिटल में 80% था 80% था फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग. अच्छा, ये ऑपोजिट था कि सेम था? ऑपोजिट था, बिकॉज कंट्री में सबसे ज्यादा डच स्पीकिंग थे, बट इन ब्रुसेल्स सबसे कम डच स्पीकिंग थे. अच्छा, एक गेस लगाओ हरजोत. इतनी ज्यादा वेरिएशन थी इस एरिया में. हमारे यहाँ भी बहुत है, इंडिया में भी है ना. हमारे तो यहाँ तो इससे भी ज्यादा है. varied people living here, different kind of food, different kind of dress culture, different kind of habits and religions. यही बेल्जियम में ही था, है ना. तो झगड़े तो होने थे. हमारे यहाँ भी वैरायटी ऑफ पीपल है, तो झगड़े तो होते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं. अब नाउ सपोज यू आर लिविंग इन द फैमिली. वाई टू सपोज ना, यू आर लिविंग इन द फैमिली. हाँ, और आपके वो 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, या घर में फैमिली है, मम्मी पापा चाचा चाची सब है. ऑल आर डिफरेंट. इवन के 2 बहनें हैं ना घर में, तो दोनों बहनें भी डिफरेंट हैं. तो ये तो पूरा कंट्री है, यहाँ तो इतने सारे लोग रहते हैं. ऑल आर डिफरेंट. अब वो जो 2 बहनें हैं ना घर में, वो भी झगड़ा करती हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है. तो यहाँ तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो झगड़ा तो हो गई है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही. बट स्मार्टनेस तो आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स की होनी चाहिए, कि झगड़े को सॉल्व करें, है ना, झगड़े को खत्म करें. हाँ जी निर्वैर, गुड मॉर्निंग. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द क्लास. भाई काम सारा हमने कर लिया, अब तो वाइंड अप कर रहे हैं. हाँ जी. So now we will see how smart our parents are that they could resolve the conflict between the children. In the same sense, the government must be smart and intelligent enough to solve the conflict. अगर कॉन्फ्लिक्ट ये सॉल्व नहीं होंगे, डिफरेंट ऑफ वैरायटी, लाइक कल्चर को लेके झगड़ा हो जाता है बेटा, रिलीजन को, हमारे यहाँ तो रिलीजन को लेके ही होता रहता है झगड़ा, है ना. कभी बॉर्डर्स को लेके झगड़ा हो जाता है. मतलब आज हमें मोर देन 70 इयर्स हो गए आजाद हुए, आज भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़ पड़ते हैं. बताओ, इतने एजुकेटेड होकर फिर भी हम लोग धरना लगाए बैठते हैं, फिर भी हम लोग पता नहीं क्या क्या प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, है ना. तो झगड़े तो होते हैं, but this is the smartness and effectiveness, intelligence of the government to solve the issue. नहीं सॉल्व करेंगे
तो लड़ाइयां होंगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, पंजाब बंद, भारत बंद, चक्का जाम और ये वो। Now we will go to Belgium again and see how the Belgian government solved the issue. अब हरजोत ने भी हमें बता दिया, युवराज ने भी हमें बता दिया, अभिजोत ने भी बता दिया कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत था सिस्टम वहां पर। जो मेजॉरिटी में है कंट्री में, वो कैपिटल में मिनॉरिटी में है, जो कैपिटल में मेजॉरिटी में है वो कंट्री में मिनॉरिटी में है। इवन सम ऑफ द पीपल दे वर नॉट अवेयर अबाउट कि हम कौन सी एरिया में रहते हैं, हमारी कौन सी लैंग्वेज है, हमारा कौन सा रीजन है। So the government was totally confused about that, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस थे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के। अब श्रीलंका जाने के बजाय हम लोग बेल्जियम ही चलते हैं। बेटा पेज नंबर 4 पे आओ, कॉपीज क्लोज कर दो बस। अब पुट योर कॉपीज असाइड, नोटबुक्स असाइड। Now we will see how the government is smart, Belgium government is smart to solve the conflict. बस थोड़ा सा ये देख लेना, इसके बाद कल हमने श्रीलंका जाना है और उसके बाद हमने फिर इंडिया आना है। तो फिर इंडिया में भी देखना कैसे पावर शेयरिंग होती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होता है, 2-2 3-3 दिन स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पंजाब बंद, भारत बंद, ऐसा ऐसा वाला है ना। चलो अब बेल्जियम, वैसे आपको क्या लगता है बेल्जियम गवर्नमेंट स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी कि नहीं होगी? हरजोत से पूछ लें। हरजोत तुझे क्या लगता है, बेल्जियम गवर्नमेंट स्मार्ट इनफ होगी कि नहीं? यस मैम, आई थिंक स्मार्ट थे बिकॉज उन्होंने पावर शेयरिंग कर ली थी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नवनीत तुझे क्या लगता है, बेल्जियम गवर्नमेंट स्मार्ट होगी कि नहीं होगी? मैम होगी। होगी, आपको भी यही? ऊपर से उन्होंने मतलब जैसे आपने अभी पाई चार्ट करवाया उसके अकॉर्डिंग तो स्मार्ट ही थी। हाँ, बस पाई चार्ट में कुछ ऐसा नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट स्मार्ट थी, पाई चार्ट में सिर्फ कंपोजिशन पता चलता। मतलब वो मतलब क्या मेरे को समझाना नहीं आता मतलब। अच्छा, मतलब मैं खुश लग रही हूँ, रीटा मैम खुश लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बेल्जियम गवर्नमेंट स्मार्ट होगी और उसने झगड़ा सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है। हाँ चलो इशू अनम्यूट करो बेटा, पढ़ना शुरू करो। पेज नंबर 4 पे आ जाओ, बीच में श्रीलंका है, श्रीलंका आज नहीं जाना। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इशू अनम्यूट कर बेटा। Yes, ma'am. The Belgium leaders took a different path. They recognized द बेल्जियम। the अच्छा इशू एक लाइन के बाद हम लोग रुकेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा लेट मी क्लियर द हेडिंग फर्स्ट। सबसे पहले मुझे इसकी हेडिंग क्लियर करने दो। अब हेडिंग है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन क्या होता है? 1 चॉकलेट विल बी गिवन टू दैट पर्सन। अच्छा देवन, देवन तो कल भी छाया हुआ था मेरी क्लास में। देवन अकोमोडेशन क्या होता है? मैम accommodation means a place to live. अब एक बात कहूं देवन, हाँ जी मैम। शो मी योर बुक इन कैमरा, जहां पर लिखा ना अकोमोडेशन इन बेल्जियम, थोड़ा क्लोज करना, दिख नहीं रहा। अच्छा ये साइड पे क्या लिखा, अकोमोडेशन के साइड पे कुछ लिखा पेन से, क्या लिखा है? मैम कुछ भी नहीं मैम, वो वैसे ही लिखा हुआ है। क्या डेट डाली है? मैम नहीं मैम, वैसे ही कुछ मैम क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके मैम ये जो ऊपर वाला पैरा है ना मैम। अच्छा यू हैव टेकन ओल्ड बुक, फ्रेंड से ली ओल्ड मैम बुक? यस मैम, मेरी सिस्टर की है। अच्छा कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द सिस्टर? मैम नैनिका शर्मा। नैनिका? हाँ जी मैम। ओके अब रीटा मैम समझ गए, ये नैनिका की बुक है, नैनिका को मैंने पढ़ाया, शी इज वेरी गुड गर्ल, और उसने अकोमोडेशन का मीनिंग लिखा हुआ बुक पे। मैम नहीं लिखा हुआ। हाँ पक्का? हाँ जी मैम, ये देखते हैं। चल फिर तो ठीक है। देवन मैं भी ना पूरी सर्जरी कर लेती होती हूँ, लेकिन नैनिका को मैंने पढ़ाया हुआ है। अब 90% वाली लड़की है वो, आई नो। चलो अब आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि बेल्जियम गवर्नमेंट स्मार्ट होगी और झगड़े नहीं होने देगी, देश में शांति रहेगी। नाउ वी विल सी हाउ। अच्छा अकोमोडेशन का मीनिंग देवन ने बताया, लिविंग प्लेस, रहने की जगह। अब सबको रहने की जगह देगा बेल्जियम।
ऐसा नहीं है that Wallonia region will not give space to the Dutch people or the French people or the German people or the government. मेरे को ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को ध्यान से सुनना आप लोग, you 30 people present in the class, ध्यान से सुनना, because this is my habit that I will ask some of the cross questioning to you. नहीं बता पाओगे तो I will remove you from the class. मेरे को सुनते जाना ना. अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह. कई बार हम ये भी बोल देते हैं ना, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, that some of the students are accommodating in school, बोलते हैं ना ऐसा. accommodating मतलब वो स्कूल में ही रह रहे हैं, तो स्कूल उनको रहने की जगह दे रहा है. In the same sense, Belgium is also accommodating all the people. ये बेल्जियम की स्मार्टनेस थी कि बेल्जियम ने सबको रहने की जगह दी. सबको मतलब मिनॉरिटी को भी, मेजॉरिटी को भी, इग्नोरिंग को भी, ऑल क्लास पीपल, सबको रहने की जगह दी. अब इशू ने एक लाइन पढ़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एट द बिगिनिंग, दैट द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. बेल्जियम के लीडर ने एक और रास्ता अपनाया. अब मेजॉरिटी मिनॉरिटी को तो वो कर नहीं सकते थे. कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना, देश में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना, नहीं होती हैं. अब नाउ पंजाबीज विल लिव इन पंजाब, ओनली महाराष्ट्र और मराठी बोलने वाले विल लिव इन महाराष्ट्र, और जो वहां पर पंजाबी रहते हैं वो आ जाएं पंजाब में, और यहाँ पर जो मराठी बोलते हैं वो चले जाएं महाराष्ट्र में. नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो फिर दैट गवर्नमेंट मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू सॉल्व द इश्यूज. बेल्जियम गवर्नमेंट ने सबको जगह दे दी और इशू को सॉल्व किया, एक नया रास्ता अपनाया. ये नया रास्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना. हाँ जी इशू. अक्षित कैमरा ऑन कर. They recognize the existence of regional differences and cultural diversity. उन्होंने पहचान लिया, सबसे पहले उन्होंने रिकॉग्नाइज करा, उन्होंने पहचान लिया यहाँ पर डिफरेंसेस हैं. तो इशू ने पढ़ा कौन कौन से डिफरेंसेस हैं. लाइक रीजनल डिफरेंसेस हैं, रीजन अलग अलग हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी है, कितने सारे कल्चर हैं, कुछ मिनॉरिटी में, कुछ मेजॉरिटी में. अब इंडिया में भी देखो कितने सारे कल्चर हैं. पंजाबी कल्चर, महाराष्ट्र कल्चर, गुजराती कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट ड्रेस हैबिट्स, कितने सारे कल्चर है वहां पर, है ना. तो वी शुड फील प्राउड. हम ये नहीं कह सकते नहीं सारे हिंदू लोग होने चाहिए थे हिंदुस्तान में, सारे पंजाबी होने चाहिए थे पंजाब में. ऐसा नहीं होता ना, वैरायटी होनी चाहिए. वी शुड फील प्राउड दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने इसको नेगेटिव नहीं लिया. बेल्जियम गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट थी और उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया. पहले तो इशू ने पढ़ा, सबको रिकॉग्नाइज करा, कल्चर कहाँ कहाँ अलग है और रीजन कहाँ कहाँ अलग है, कहाँ कहाँ मिनॉरिटी है, कहाँ कहाँ मेजॉरिटी है. अब वो क्या करने वाली है गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना. मैं आपसे पूछूंगी मैंने क्या बोला, इशू ने क्या पढ़ा. हाँ इशू. 1990 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement for everyone to live together within the same country. अच्छा, अब ये देखो 1 मार्क आंसर. कितनी बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया? 4 टाइम्स. 1 मार्क आंसर. बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंडमेंट करी, 70 से लेकर 93, लगभग कितने 20 साल, 20-22 साल तक उन्होंने अपना 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया. वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए. रेज योर हैंड्स दोज हु वांट टू आंसर. कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम बहुत पड़ा, हम पढ़ लेंगे, आप रीडिंग पे मत देखो. अभिजोत, we should amend our constitution sometimes or not? Yes, we can amend for the public good. Government or people can amend the constitution according to the needs. Navneet. Ma'am, yes, we can change the constitution according to the need of people if there is some kind of fights or like that. We can change our constitution. I want another people's participation. मुझे राय चाहिए सबकी कि अमेंडमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन की खिलौना थोड़ी ना. यादविंदर, राय दो ना अपनी. कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए कि नहीं, चेंजेस करने चाहिए कि नहीं. पब्लिक की नीड पे है, अगर वो कहते हैं तो करनी पड़ेगी. ठीक है, 3 व्यूज. अजय तू क्या कहता है भाई?
मैम यस चेंज होने चाहिए जैसे लोगों के उनकी नीड्स पर। ठीक है, मुझे अभिजीत की राय लेनी है। अभिजीत तू बता, कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए अमेंडमेंट कि नहीं होने चाहिए? As it takes many years to form, and it would be something good. They think so much. They took so much year to think, and they have think some better decision. But if there is so much need to change, there is something going wrong. So much need is there to change, and it can be changed. चलो, अच्छा हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कभी? हमने उसमें चेंजेस करे? इंडिया को नहीं भूलती ना, मैं यूरोप जाती हूँ फिर भी इंडिया को बीच में ले आती हूँ। आज बेल्जियम में मैं फिर इंडिया को बीच में ले आई हूँ। कल हमने श्रीलंका जाना, मैंने फिर इंडिया को बीच में ले आना, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर इंडिया है। गुरनूर, शेयर योर व्यूज बेटा। गुरनूर, आपको क्या लगता है? Yes, ma'am, we need to change our constitution. हमारा चेंज हुआ इंडिया का कभी? Yes, ma'am. अच्छा, अभी रिसेंटली कब कुछ हमने चेंज करा? मैम रिसेंटली लॉ हुआ था कोई चेंज। हाँ, कौन सा, कुछ याद है? नहीं याद है। नहीं याद। अब तक गुरनूर कितने चेंजेस हो चुके हैं हमारे यहाँ, अंदाजा? काफी चेंजेस हुए हैं। काफी मतलब अंदाजा हमें नहीं? इतना नहीं पता, बट होते रहते हैं। होते ही रहते हैं। और रिसेंट चेंज हमने 370 हटाया कश्मीर को लेकर, नाउ कश्मीर स्पेशल स्टेट। और आज तक हमने 100 से ज्यादा चेंजेस कर लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने तो 4 बार चेंज किया बेल्जियम ने 20 सालों में। हमने 100 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 103 चेंजेस वी हैव डन। और चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, नहीं चेंज करेंगे तो टूट जाएंगे। अभिजोत ने बिल्कुल सही कहा, वी हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि जो 1950 में बन गया वो भगवान का कहा हो गया, अब उसमें कुछ चेंज नहीं करना। हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। चलो, वी विल कंटिन्यू। बेल्जियम गवर्नमेंट से कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हुआ इशू कि नहीं हुआ, वी विल डू टुमारो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।